जसं मी आपल्याला आय हॅव टोल्ड. Okay, good morning friends. Once again, welcome to our third lecture and second lecture of unit number 2, which deals with the general aspects of environmental engineering. Today, we will be studying the types of sewerage system. Yesterday, we have seen methods of sewerage system. Okay, there are two methods of sewerage system. The one is the conservancy system, and the another is water carriage system. Okay. Uh, Again and again try to imbibe all these things in your mind, as I have been telling you again and again, because these are helpful to you for all your future developments. So in the same way, types of sewerage system, you all must have understood now what is sewerage system. So for the water carriage system, okay, listen to all words very carefully and concentrate on that. In the water carriage system, there are three types of the sewerage system. They are the combined system, they are the separate system, and the third one is partial system. Okay. You all know what is sewerage system. That is collection of the wastewater and conveyance or transportation of the wastewater. So that is the sewerage system. In between whatever underground drains, that is the pipelines or the conduits. We will use the word conduits. Conduits, conduits. That is the tunnels, underground tunnels, you can say. So these conduits, pipes, drains, gutter lines, you can say, are used in water carriage system, as well as the some appurtenances in this carriage system or in this sewerage system. The appurtenances like manholes, the appurtenances like the rainwater inlets, the appurtenances like ventilation shafts, the appurtenances like some invert structures. So various such types of the appurtenances, that is when this carriage system or these pipelines cross some structure or other, so we have to provide some structures to overcome or to carry this waste from one end to another, or certain maintenance purposes like the manholes, etc. Sometimes these pipelines get choked or get clogged, then we need somebody to enter into this pipeline and clean those pipelines. So all this sewerage system or what for water carriage system consist of, there are three types: combined system, separate system, and the partial system. First, I will describe you in short, and then we will move forward. In combined system, combined sewerage system, water carriage system, wherein in a single pipeline, in a single sewage pipeline, drainage line, or the conduit, all the waste water is being taken or is being collected and transported towards the treatment plant or at the disposal point. That is all means all the sanitary sewage as well as the storm sewage, that is the domestic sewage and the storm sewage, is being carried through one pipe. So along with the domestic sewage, storm sewage is carried through the same sewers of the sewerage system. Then it is called as the combined system. As you can see in this sketch, you must be watching on your laptop or on your mobile on the right side. You can see there is a separate pipeline for the sanitary drain from the house. Also, there is a pipeline to catch the rainwater from the roof of the houses, as well as there is a separate pipeline for to carry the storm water on the street, on the roads, or on the open in the open ground. But all these three pipeline carry the storm sewage as well as the sanitary sewage from the house
that is the black water and gray water, to a same pipe, to a single pipe or single drain, which is called as a combined sewer. Okay, sewer, we all know what is sewer, which is called as a combined sewer. So now we will see what are the other functions and advantages and disadvantages. Now, where this combined system is beneficial and where this combined system is not beneficial. So, in general, you can see if a area, if the country, you can say, if that country is having rainy season for whole of the year, जो एरिया में, जो देश में बोलेंगे हम, समझो कि जहां पे भी, या जो पार्ट में, हमारे इंडिया में भी कुछ पार्ट में 12 महीने बारिश रहती है, तो जहां जो एरिया में 12 ही महीने बारिश रहती है, या मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर देर इज a रेनफॉल, देर इज a स्टॉर्म, then in that case we will provide the combined system. Okay, because that storm water which is entering along with the drainage, along with the sanitary sewage, will make that drainage line and will provide a self cleaning velocity in those sewers. Okay, तो जहां पे बारिश 12 ही महीने रहती है, वहां पे हम ये कंबाइंड सिस्टम देंगे। लेकिन हमारा जैसा एरिया है, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इंडिया का मैक्सिमम पार्ट है, यहाँ पे बारिश सिर्फ 3 महीने रहती है साल के, 3 या 4 महीने रहती है। सो व्हाट इज देयर देन फॉर द रिमेनिंग 7, 8, 9 months? Because in those months there will not be any rains, so no water will enter in those combined pipelines, combined sewer lines, combined drainage lines, and hence if the quantity of water reduces, then naturally there will be lesser velocity to that sanitary sewage, और वो अपने आप, जिसको सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बोलते हैं, वो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो पाइपलाइन चोक होने के बहुत चांसेस है। सो फॉर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर द डिस्चार्ज थ्रू दिस पाइपलाइंस मे बी फार लोअर एज कंपेयर टू डिजाइन डिस्चार्ज, क्योंकि डिजाइन करते वक्त हम क्या करेंगे कि उसमें स्टॉर्म वाटर और सैनिटरी वेस्ट दोनों का मिलके उसके लिए पाइपलाइन डिजाइन करेंगे। लेकिन साल के 8 महीने यदि बरसात का पानी नहीं है, तो फिर वो डिजाइन डिस्चार्ज कम होगा। नेचुरली डिस्चार्ज यानी आपको मालूम है Q इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। इफ एरिया इज लेस, तो नेचुरली वेलोसिटी विल बी लेस, डिस्चार्ज इज लेस, और वेलोसिटी कम, तो वो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी वो पाइप में नहीं रहेगी और पाइप विल क्लॉग। तो इसलिए हमें समझना ये है कि ये कंबाइंड सिस्टम कहाँ पे हम देंगे। ठीक है, तो अभी सबके ध्यान में आ गया होगा कि कंबाइंड सिस्टम इज एडवांटेजियस। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं। इट इज एडवांटेजियस इन एन एरिया वेयर रेनफॉल इज स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, 12 महीने जहां बारिश है, देन देयर इज नो नीड ऑफ फ्लशिंग ऑफ द सीवर्स। वो सीवर लाइन जो है, गटर लाइन है, उसको साफ करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बरसात के पानी से ही सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी उसको आ जाएगी, will be developed due to more quantity because addition of the storm water. So therefore only one set of pipeline will be required for house plumbing, है ना। हाउस प्लम्बिंग के लिए हमें सिर्फ एक ही पाइपलाइन की जरूरत पड़ेगी और ओवरऑल सीवर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वो भी हमें एक ही पाइपलाइन लगेगी। इन कंजेस्टेड एरियाज it is easy to lay only one pipeline rather than 2 pipes as required in other systems, है ना। तो हमें ये ध्यान में आ गया कि इसमें एक ही पाइपलाइन हमें देना है। तो कंजेस्टेड एरिया में, क्योंकि अभी हम नागपुर में सब तरफ देख रहे हैं कि कहीं रोड्स के काम चालू है, कहीं मेट्रो के चालू है, कहीं बाजू में वो इलेक्ट्रिक लाइन के काम चालू है, कहीं पाइपलाइन के काम चालू है। तो ऐसे जगह पे काम करते वक्त यदि हमें एक ही पाइपलाइन यदि ड्रेनेज के लिए देना है, तो इट इज इजी टू एग्जीक्यूट दैट वर्क। यदि 2-3 पाइप देना है तो जरा डिफिकल्ट है। तो कंजेस्टेड एरिया में ये बेनिफिशियल है, ये हम देखेंगे।
अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? नॉट सुटेबल फॉर द एरिया विथ स्मॉल पीरियड ऑफ रेनफॉल इन ईयर, यानी जैसे हमारे भारत देश में है कि यहाँ पे स्मॉल पीरियड ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल का रेनी सीजन है दैट इज स्मॉल फॉर द 3 to 4 months. So therefore here we will not provide the combined system. Dry weather flow यानी अदर देन रेनी सीजन जो वेस्ट वाटर फ्लो रहता है ना, ख्याल देते जाइए मैं जो बोल रहा हूँ. ड्राई वेदर फ्लो एक नया वर्ड अगर आया है जो इसको हम आगे भी समझा लेंगे. तो ड्राई वेदर फ्लो यानी इट इज द वेस्ट वाटर फ्लो अदर देन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्या है कि बरसात का भी पानी वो ड्रेन में आता है, तो वो बरसात के पानी के कारण वो वेस्ट वाटर और अच्छे से बहता है, क्योंकि वेस्ट वाटर में क्या है, सिर्फ पानी नहीं है, सॉलिड्स भी है उसमें. तो ड्राई वेदर फ्लो यानी अदर देन रेनी सीजन जो भी वेस्ट वाटर फ्लो रहता है, जो सीवेज रहता है, वो ड्राई वेदर फ्लो विल बी स्मॉल ड्यू टू विच सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी may not develop in sewers resulting in silting. ये डिसएडवांटेज है कंबाइंड सिस्टम का. तो इसलिए कंबाइंड सिस्टम हम हमारे एरिया में, यानी जहां पे बरसात सिर्फ 3-4 महीने की है, वहां पे हम बिल्कुल देंगे नहीं. लार्ज फ्लो इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर डिस्पोजल, hence resulting in higher capital and operating cost of the treatment plant. और इसका कंबाइंड सिस्टम का एक और डिसएडवांटेज क्या है कि अभी हम एक ही सीवर लाइन में से we are carrying through only single sewer line the storm water sewage as well as the sanitary sewage. So the quantity of the sewage has increased. The total quantity of sewage is equal to storm water sewage plus the sanitary sewage. So therefore, for treatment of this total quantity of sewage, we will need larger size of the treatment plant, and for larger size of the treatment plant, more cost will be required, not only for the construction of the treatment plant, but also for the operating of the treatment plant. So this is another disadvantage of the combined system. Now, also as the quantity of the sewage is more, so therefore the pumping also needs more cost, and therefore it is uneconomical. During rains, overtopping, overflowing of sewers will spoil public hygiene. If wrong design, hydraulic design is done of the sewers, or if excess rain comes, then during rainy season, these sewers may block or may overflow, and the water of the sanitary may come out on the roads, etc., and will spoil the public hygiene. So what is the another option then for the areas where the rainy season is of smaller duration? The another system which is called as a separate system. Somebody's mic is on. बीच में से किसी का तो भी माइक ऑन हो रहा है, तो उसमें से आवाज आ रही है. अभी बंद हो गया है. तो जो अभी नेक्स्ट सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं, सीवरेज सिस्टम, इज सेपरेट सिस्टम वेयर इन it is specially suited for the area like India, wherein the rainy season is of 3 to 4 months. In this system, there are two sewer lines provided. The one sewer line is provided for carrying the sanitary sewage or the domestic sewage or the industrial sewage, and the another sewer line or the gutter line is provided to carry out the storm sewage. Okay, we have seen earlier that the sewage consists of the two types, two sewages, total sewage. That the first is the domestic sewage. Sanitary sewage is equal to the domestic or the community sewage plus industrial sewage plus storm water sewage, है ना. ये इक्वेशन हम ध्यान में रखेंगे. तो सेपरेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि ये इसमें रेन वाटर सीवेज जो है, स्टॉर्म वाटर सीवेज जो है, इसके लिए अलग से पाइपलाइन करते हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, वो कैरी करने के लिए. और जो सैनिटरी या डोमेस्टिक सीवेज है या इंडस्ट्रियल सीवेज है,
इसको हम अलग से पाइपलाइन में विद द डिफरेंट पाइपलाइन वी कलेक्ट and we transport up to the treatment plant. And as this storm water runoff does not contain that much uh, wastage, or it is purely maximum of the storm water, so does not contain that much foul material, that much foul gas creating material, or that much harmful sewage. Therefore generally we let this storm water directly into the stream. इसका मतलब ऐसा है कि बरसात का पानी जो है, जो हमारे घरों के ऊपर से कलेक्ट होता है, हमारे छतों के ऊपर से, जो रोड के ऊपर कलेक्ट होता है, जो ग्राउंड के ऊपर कलेक्ट होता है, ये बरसात का पानी हम अलग से कलेक्ट करते हैं और अलग से पाइपलाइन से, क्योंकि इसमें हार्मफुल मटेरियल काफी कम रहते हैं, तो इसको ज्यादा ट्रीट ना करते हुए हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा नदी या नाले में छोड़ देते हैं जो आसपास के है। और जो बाकी मटेरियल जो है, दूसरा जो है, जो हमारे इंडस्ट्री का वेस्ट है या हमारे ज्यादा से ज्यादा हाउस होल्ड का वेस्ट है, घरों का वेस्ट जो है, जिसको हमने डोमेस्टिक सीवेज करके नाम दिया है, इसको अलग से गटर लाइन से, अलग से सीवरेज सिस्टम से, अलग से पाइपलाइन से या कंड्यूइट से कलेक्ट करके इसको कन्वे करते हैं, इसको एक जगह से ट्रीटमेंट प्लांट तक के ले जाते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर इसमें का सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट को हम एफ्लुएंट करके बोलते हैं। ये वर्ड अभी धीरे धीरे पढ़ समझते जाइए। लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज द एफ्लुएंट। द एफ्लुएंट पार्ट एज वेल एज द सॉलिड पार्ट दैट इज द स्लज, ये दोनों को ट्रीटमेंट के बाद में हम अलग अलग करते हैं। और जो एफ्लुएंट है, ये एफ्लुएंट जो है ये बाद में इट इज एज गुड एज द नेचुरल वाटर, फिर इसको हम नदी या नाले में छोड़ देते हैं। और वो स्लज जो है, वो स्लज को हम एज ए मैन्यूअर और एज ए फर्टिलाइजर करके यूज करते हैं। तो ये एक सेपरेट सिस्टम हो गई। ये सेपरेट सिस्टम के एडवांटेजेस ऐसा है कि एज द सीवेज फ्लोज इन सेपरेट पाइप, hence quantity to be treated at sewage treatment plant is small, resulting in economy of the treatment, है ना, क्योंकि we are carrying the for the treatment only domestic as well as the industrial waste or the sewage, therefore the treatment plant needed is small as compared to the combined sewerage system. As well as this system may be less costly as only sanitary sewage is transported in closed conduit, and storm water can be collected and conveyed through open drains also if you wish. When pumping is required during disposal, this system is economical due to less flow. Self cleaning velocity जो है at certain point of the location in dry weather flow will be created as we are designing. If it is not developed, then sometimes यदि एक आधे बार डेवलप नहीं हुई सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, तो ऐसे पाइपलाइन को हमें फ्लश करना पड़ता है, बीच में से पानी डाल के इसको क्लीन करते रहना पड़ता है। दिस सिस्टम रिक्वायर्स लेइंग ऑफ द 2 सेट्स ऑफ पाइप। इसका एक डिसएडवांटेज और क्या है कि भाई इसमें 2 पाइपलाइन देना है, लेकिन ठीक है, इसमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है और कंजेस्टेड एरिया में काम करते वक्त तकलीफ हो भी सकती है, लेकिन एक बार होने के बाद में इसका मेंटेनेंस कम है और बेसिकली इसका ट्रीटमेंट प्लांट हमें कम कैपेसिटी का लगता है। मेंटेनेंस लेकिन दोनों का लगता है। इनिशियल कॉस्ट में बी मोर, मेंटेनेंस बिट मोर, बट इन द लॉन्ग टर्म this is a very good system and it is specially suited for the area like the India, wherein only monsoon season or the rainy season is for the 3 to 4 months from the June to October, ज्यादा से ज्यादा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एंड हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 15 अक्टूबर तक के। ठीक है, अभी एक लास्ट सिस्टम है पार्शियली सेपरेट सिस्टम। इट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, that is the combined system as well as separate system। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है सेपरेट सिस्टम और पार्शियली सेपरेट सिस्टम में। इसमें हम क्या करते हैं कि we provide 2 sewer lines for carrying
the sewage. You are listening very carefully. We provide 2 sewer lines, 2 gutter lines, 2 conduits to carry the sewage in one pipeline, in one sewage line. We carry the domestic sewage plus the storm sewage from our rooftop. यानी बिल्डिंग के जो रूफटॉप है उसके ऊपर जो बरसात का पानी आता है, और बाकी हमारे घरों का जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर है, इसको सिर्फ हम एक पाइपलाइन से कैरी करके ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ ले जाते हैं, कलेक्ट करके कन्वे करते हैं। और बाकी जो हमारे रोड के ऊपर का बरसात का पानी है, ग्राउंड के ऊपर का बरसात का पानी है, जो स्टॉर्म वाटर है, that we collect by another pipeline, another gutter line, another conduit, and we dispose it off directly into the nearby streams, nearby nala, nearby river. ठीक है? So it is the partial separate system. This also we can provide in our Indian panorama or in our Indian area. ये हमारे यहाँ पे हम adopt कर सकते हैं हमारे भारत में. ठीक है? The storm water from the other places. So what is done here? That the storm water from the roofs and paved country yards, यानी हमारे घर के आजू बाजू का जो जिसको हम कंट्री यार्ड या आंगन बोलते हैं, उसमें का बरसात का पानी, और बाद में सीवेज फ्रॉम द रेसिडेंसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, इट इज कलेक्टेड in the single pipeline and is being carried out in the single pipeline, separate pipeline, and the storm water from the other places is collected separately using separate conduit and is later on taken to the treatment plant. That is the separate domestic as well as rainwater is taken to the treatment plant, and this rainwater from the ground or the roads is directly disposed of into the nearby nala. Economical and reasonable size sewers are required. Work of house plumbing is reduced as rainwater from roofs, sewage from baths, kitchens, etc. are combined with discharge from closets. Flushing of sewers may not required as small portion of the storm water is allowed to flow or enter into this sanitary sewage. ये इसके एडवांटेजेस है, और एक दो माइनर डिसएडवांटेजेस ऐसे कि 2 पाइपलाइन देना है, तो इसलिए इसकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, एंड थोड़ा स्टॉर्म वाटर, अभी रूफटॉप का स्टॉर्म वाटर इसमें आ रहा है, तो थोड़ा ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग का साइज बढ़ेगा, पंपिंग स्टेशन. इन ड्राई वेदर सीजन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मे नॉट डेवलप इनटू द सीवर. ड्राई वेदर और ड्राई वेदर फ्लो, मैंने आपको बताया कि अदर देन रेनी सीजन फ्लो, द वेस्ट वाटर फ्लो इज कॉल्ड एज द ड्राई वेदर फ्लो. तो ड्राई वेदर में, ड्राई वेदर फ्लो में सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, यानी वो पाइप को खुद को साफ करने की जो वेलोसिटी है, वो ये सीवर में डेवलप नहीं हो सकती है एक आधे बार, उसमें सॉलिड मटेरियल रहने के कारण. तो इसको फ्लश करने की जरूरत हमें पड़ सकती है. तो हमने बहुत अच्छे से ये 3 सिस्टम अभी पढ़ा है. हमने मेथड्स भी पढ़ा है, कंजर्वेंसी एंड दी वाटर कैरियज सिस्टम ऑफ द सीवरेज सिस्टम. उसके बाद में वाटर कैरियज सिस्टम के हमने फिर से 3 मेथड्स पढ़े, 3 टाइप्स पढ़े, कि वन इज कॉल्ड एज द कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम. नाउ वी विल मूव ऑन टू द टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ द सीवर्स. जो सीवर्स है, जो गडर लाइन है, जो पाइप लाइन है, जिसको हम कंड्यूइट्स करके बोलते हैं, तो इसके कौन कौन से वेरियस टाइप्स है from the point of view of its conveyance and carriage, as well as from the point of view of its importance. ये अभी हम देखते जाते हैं. जैसे हमारे ये यहाँ पे आपको स्कीमेटिक, इसमें आपके स्लाइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मेरा कर्सर शायद आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले है बिल्डिंग सीवर्स, या उसको हाउस सीवर भी कहते हैं. हमारे इंडिविजुअल जो हाउसेस है, हमारे जो इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशंस है, मे बी कॉलेजेस है, मे बी टॉकीज है, मे बी एक आधा स्टेडियम है, एक आधा मॉल है, तो यहाँ से जो मैनहोल से कलेक्शन के तरफ में जो हमारे घरों से जो ड्रेनेज लाइन निकलती है, गडर लाइन निकलती है, जो पाइप लाइन निकलती है, उसको बोलते हैं हाउस सीवर्स.
They are called as the house sewers or they are called as the building sewers. ठीक है. अब ये 10, 20, 30 एक सोसाइटी में, एक एरिया में काफी बिल्डिंग्स रहते हैं, है ना. एक लाइन में, जैसे हम बोलेंगे एक लेन में 7, 8, 10, 20 बिल्डिंग्स रहते हैं एक लेन में. तो वो हर एक लेन में के हर एक बिल्डिंग का वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने के लिए एक और पाइपलाइन रहती है, जो दो तीन चार पांच बिल्डिंग का पाइप वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वाटर या सीवेज कलेक्ट करता है. वो जो है विच कंबाइंस all the buildings all the building sewers in a lane or in a particular area is called as the lateral sewer. तो सबसे छोटा सीवर कौन सा हो गया? बिल्डिंग सीवर. 2-4 बिल्डिंग या 8-10 बिल्डिंग से जो वेस्ट मटेरियल लेके पाइपलाइन एक जगह ले आती है उसको बोलेंगे लैटरल सीवर. और ऐसे बहुत सारे लैटरल सीवर एक एरिया के, जैसे हम बोलेंगे, वो एक और बड़े पाइपलाइन में आएगी, क्योंकि धीरे धीरे क्वांटिटी ऑफ सीवेज विल इंक्रीज, सो वी विल नीड मोर साइज सीवर्स. शुरू से ही बड़े बड़े सीवर लगाएंगे तो अनइकोनॉमिकल होगा. तो उसके बाद में बड़े सीवर है, उसको हम बोलेंगे ब्रांच सीवर, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सबमेन्स, है ना. मुझे लगता है आप नोट डाउन कर रहे हैं नोटबुक में. बिल्डिंग सीवर, लैटरल सीवर, ब्रांच सीवर. और ऐसे काफी ब्रांच सीवर मिलने के बाद में फिर वो एरिया में एक आधी बहुत बड़ी पाइपलाइन हमें कहीं तो भी एरिया के सेंटर से ले जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रंक सीवर. दे आर कॉल्ड एज द ट्रंक सीवर. और ऐसे काफी ट्रंक सीवर जब एक आधे बड़े गडर लाइन को या पाइपलाइन को जाके मिलती है, जो काफी लार्ज डायमीटर की रहती है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्टर और इंटरसेप्टिंग सीवर्स. इंटरसेप्टर और इंटरसेप्टिंग सीवर्स. ये इंटरसेप्टर्स और इंटरसेप्टिंग सीवर्स ये पूरे गांव का, पूरे एरिया का जो सीवेज है वो ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ ले जाता है. ठीक है. और उसके आखिरी में जो है ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जाता है. तो हमने देखा हाउस सीवर, लैटरल्स, ब्रांच और द सबमेन्स, उसके बाद में मेन और द ट्रंक सीवर. ठीक है. और उसके बाद में इंटरसेप्टर. ये 5 टाइप के हमने देखा, और ये स्केच ये आपके नोट्स में भी रहेगा, आप देखते देखते निकाल सकते हो, तो इसको स्केच भी निकाल सकते हैं थोड़ा सा हमें समझने के लिए. और इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द सीवर्स, यानी ये तो अभी कैसा हो गया कि दीज क्लासिफिकेशन वी हैव सीन ऑफ द बिल्डिंग सीवर, लैटरल सीवर, ट्रंक सीवर, इंटरसेप्टिंग सीवर्स एक्सेट्रा. और इस इन बिटवीन देयर आर सर्टन एपर्टनेंसेस. इसके बीच में ये जब पाइप सब सीवर एक में को कनेक्ट होते हैं, तो इसमें कहीं रोड क्रॉस होता है, कहीं नाला क्रॉस होता है, कहीं 5-6 पाए सीवर एक जगह लाते हैं तो उसको मैन होल देते हैं. बरसात का पानी भी कलेक्ट करने के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ती है. तो एपर्टनेंसेस भी इसमें रहेंगे काफी. ठीक है. So these are the classification we have done according to the uses. Now we will see classification according to the for what, or according to the purposes, you can say. The types of the sewers in other classification according to purpose. The first classification is according to use. Is the sanitary sewer. That is the sewer or the sewage, sewer line, gutter line, pipeline, or the conduit line which carries sanitary sewage only. That is the wastewater from the municipality, either domestic or industrial wastewater. ठीक है. तो उसको सैनिटरी सीवर बोलेंगे. स्टॉर्म सीवर, अब आपको स्टॉर्म यानी सभी को मालूम है रेन वाटर, विच कैरीज द सीवेज इंक्लूडिंग सरफेस रन ऑफ एंड द स्ट्रीट वॉश. सरफेस रन ऑफ बरसात का पानी, और रास्ता धोने के बाद में, यानी बरसात के पानी से रास्ता धोया जाता है ना, स्ट्रीट वॉश बोलते हैं उसको. ये स्ट्रीट वॉश ये दोनों जो कलेक्ट करता है उसको स्टॉर्म सीवर बोलेंगे. कंबाइंड सीवर तो आपको मालूम है, विच कैरीज डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड द स्टॉर्म सीवेज, तो उसको कंबाइंड सीवर करके बोलेंगे. लैटरल सीवर आपने सबको मालूम है, दिस सीवर कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउस सीवर्स. सबमेन, दिस कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम द 2 or more lateral. मेन और द ट्रंक, it receives the discharge from 2 or more submains or the trunk sewers.
or the submain sewer, और बाद में the last one is intercepting sewers or the outfall sewers. It receives discharge from collecting system and conveys to the final disposal from the trunk sewers. ठीक है, तो आखिरी जो है intercepting sewer, ये all this classification of the sewers we have seen. Now we are moving into the last part of today's discussion, the patterns of collection system. है ना, ये जो छोटे छोटे बातें हम पढ़ रहे हैं, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम के ऊपर एग्जाम में जरूर आता है. ठीक है, आइदर आपकी एग्जाम अभी कैसी होती है, रिटर्न होती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, एमसीक्यू टाइप होती है, तो कैसे भी रहा तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस concepts so that you should be able to answer. Okay, but definitely all this what we have learned up till now, आधा क्वेश्चन तो हमने कर लिया है. अभी हम आगे में जाते हैं, पैटर्न्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम. है ना, अभी जैसे एखादे हमारे गांव है, जैसे एखादा पवनी है, नागपुर है, चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है, एखादा कहीं तो भी कुल्लू है, मनाली है ना, ऐसे बहुत सारे गांव है. द सिटीज मे बी इन फ्लैटर एरिया, द सिटीज मे बी इनटू द हिली एरिया, or cities may be along the river side, the cities may not have the river side. So according to the location and the topography of the city where this sewerage system is to be provided, that is for the collection and conveyance of the sewage is to be provided with the help of the water carriage system, with the help of the pipeline, the patterns of collection system depends. Topographical and hydrological features of the area, पैटर्न्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम काय के ऊपर डिपेंड है, वो है टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एरिया. टोपोग्राफी मैंने आपको अभी सब समझाया कि फ्लैट टोपोग्राफी है, हीली टोपोग्राफी है, नदी है पास में, नदी नहीं है, क्योंकि हमें ये जो ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में वेस्ट है या ट्रीटमेंट के या वेस्ट जो कलेक्ट करके कन्वे करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसको ले जाने के लिए हमें डिफरेंट पैटर्न्स यूज करना है. तो वो ये टोपोग्राफी और पर डिपेंड करेगा. हाइड्रोलॉजी है ना, फिर से रेनफॉल कितना होता है, कुछ रन ऑफ ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, रन ऑफ की हिली एरिया है, ऑल दिस कम्स अंडर हाइड्रोलॉजी, you know very well. Location and methods of the treatment and disposal work, type of the sewerage system employed, okay, and extent of area to be served, कितने बड़े एरिया को हमें सर्व करना है, इसके ऊपर पैटर्न्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम डिपेंड है. ये ऐसे मेनली 5 पैटर्न है. एक है परपेंडिकुलर पैटर्न, इंटरसेप्टर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, फैन पैटर्न एंड जोन पैटर्न. ठीक है, पैटर्न अब धीरे धीरे समझ में आएगा आपके. अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने समझा कि पैटर्न यानी एखादे एरिया में हम ये जो नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइन है ये कैसे प्रोवाइड करें, ताकि वो एरिया के टोपोग्राफी के हिसाब से हमें ये मटेरियल कलेक्ट करना, वेस्ट वाटर या सीवेज कलेक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना इजी जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट तक के या डिस्पोजल तक के. तो उसके लिए ये डिफरेंट पैटर्न है. एक है परपेंडिकुलर, इंटरसेप्टर, रेडियल, फैन एंड द जोन पैटर्न. फर्स्ट इज द परपेंडिकुलर पैटर्न. ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, स्केच में आपको दिख रहा होगा, ये रिवर है. ये जो ब्लैक कलर में है, दीज आर ऑल द मेन सीवर लाइंस फ्रॉम द सिटी. एखादे शहर में से ये शहर है, दिस सिटी इज लोकेटेड अलोंग द रिवर, और रिवर साइड में जरा स्लोप है. तो ये सिस्टम में कैसे करते हैं, अब ये शहर का हमें सीवेज कलेक्ट करना है, तो कैसे कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो पैटर्न यूज करते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पैटर्न. तो यानी ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस सिटी द मेन और द ट्रंक सीवर्स आर टेकन डायरेक्टली टू द रिवर or to the individual treatment plant, and the perpendicular submains, the perpendicular laterals, submain को perpendicular lateral और lateral को perpendicular house drain, इस सिस्टम से
we collect the sewage in the sewerage system. Therefore, it is called as the perpendicular system. Why it is adopted? Because the shortest possible path, yeah, length is maintained for the rains carrying storm water and sewage, suitable for separate system and partially separate system. किसके लिए suitable है? Separate system और partial separate system के लिए. Not suitable for combined system. As sewage treatment plant, STP, long form as sewage treatment plant, needs to be installed at many places, else will pollute the water body where the sewage is discharged. ठीक है, मुझे लगता है धीरे धीरे आपके ध्यान में आ गया है कि ये पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ सीवरेज सिस्टम. एखादा शहर यदि नदी के पास में लोकेटेड है और नदी के साइड में यदि उसमें स्लोप है, उतार है, टोपोग्राफी स्लोपी टुवर्ड्स रिवर है, तो फिर इस शहर से हम वेस्ट वाटर कैसा कलेक्ट करेंगे? तो वी विल कलेक्ट द वेस्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस परपेंडिकुलर पैटर्न. क्योंकि इसका उपयोग यही है कि इसमें क्योंकि नदी के पास में है तो शॉर्टेस्ट, यदि हमें, क्योंकि हमको जो सीवरेज सिस्टम करना है, कलेक्शन सिस्टम जो वो कॉस्टली नहीं करना है, क्योंकि हमें पब्लिक मनी हम यूज कर रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन में, है ना, लोगों के टैक्स में से ही करेंगे ना, तो ज्यादा पैसा थोड़ी वेस्ट होना चाहिए. तो इसलिए हमें कम से कम पाइपलाइन, कम से कम लेंथ, कम से कम डायमीटर, ये सब हम करेंगे. तो इसलिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ करेंगे, suitable for the separate system and partially separate system, and not suitable for the combined system, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें ज्यादा बनाने पड़ेंगे, इसमें ज्यादा मेन लाइन हम देने वाले हैं, तो इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा. इसलिए इट इज यूजफुल फॉर द separate or partial. Second system is interceptor system. As this is the sketch, as I have told you friends, generally it is asked in exam, either any of the system or a short note on this. So therefore try to understand with the help of all these sketches. If you could draw in your notebook along with our discussion, it is very good. So interceptor systems, as you can see, all the, you can say, from the house drains, house sewers, the laterals or submains, the trunk sewers, all are intercepting each other according to the area, means wherein, and all these are taken through the final or the outfall sewer, you can say, or the final interceptor sewer or the trunk sewers, etc. All are perpendicular but crossing to each other, not taken separately. Finally, only one pipeline will take the waste material at the treatment plant. This is called as the interceptor pattern. Sewers are intercepted with large sewers, as can be seen in this figure. Interceptor carries sewage to a common point where it can be disposed of with or without treatment. Overflow should be provided to handle very large flow. ये ओवरफ्लो क्या है हम आगे में पढ़ेंगे. ओवरफ्लो यानी ज्यादा का जो बरसात का पानी एक आधे बार आता है तो वो ऊपर ही ऊपर निकल जाए, उसको ओवरफ्लो करके बोलते हैं. ये एपर्टनेंस है एक. तो ये हमने लार्ज फ्लो के लिए प्रोवाइड करना करके इंटरसेप्टर सिस्टम है. ठीक है, तो पहले हमने देखा कि द फर्स्ट सिस्टम वी हैव सीन परपेंडिकुलर पैटर्न, देन द इंटरसेप्टर सिस्टम. थर्ड वन इज रेडियल पैटर्न, है ना. जैसे कुछ शहर जो है, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे गांधीनगर है, या अभी नया रायपुर बना है, दीज आर डिजाइंड रेडियली, यानी इसका जो डेवलपमेंट है ये रेडियल है. तो ऐसे इसमें यहाँ का सीवेज मटेरियल कैसा कलेक्ट करना और डिस्पोज के लिए कैसे बाहर ले जाना, तो वो रेडियल पैटर्न, यानी रेडियल जो मेन ट्रंक है, मेन ट्रंक लाइन्स है, मेन ट्रंक सीवर लाइन्स आर रेडियली टेकन आउट ऑफ द सिटी. ठीक है, जो फ्लैटर एरियाज है, टोपोग्राफी है, और जहां पे रेडियल डेवलपमेंट और प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल चंडीगढ़ सिटी है, गांधीनगर है गुजरात में, या हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर अभी डेवलप हुआ है,
there is some one city called as Amravati in Hyderabad, in Telangana, and this आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी है. तो ऐसे इसमें हम सुटेबल फॉर द लैंड डिस्पोजल. सीवर्स आर लेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर. सिटी के सेंटर से रेडियली बाहर के एरिया में, यानी ऐसे इसमें क्या होता है, वो डिफरेंट सेक्टर्स से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं और वो बाहर ले जाते हैं. सी, और इसमें ड्रॉबैक सिर्फ एक ही है कि 3-4 जगह पे डिस्पोजल प्लांट या ट्रीटमेंट प्लांट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, और बाद में फिर एक आधी रिवर यदि पास में जाती है तो वहां पे कंबाइंड सीवेज आफ्टर ट्रीटमेंट इज नीडेड टू बी टेकन आउट. द नेक्स्ट इज फैन पैटर्न, है ना. एक आधे बार क्या होता है कि एक साइड में नेचुरल रिवर्स कोर्स है, राइट साइड में जैसा दिखाया गया है, और लेफ्ट साइड में यूनिफॉर्म ग्रेडियंट से सिटी है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी, लेकिन अलोंग साइड द रिवर on one side the area is bit flatter, it has got the slope towards the river but not hilly. So in this case we provide a pattern called as a fan. जैसे यहाँ पे दिख रहा है फैन जैसा, जैसे फैन रोटेट होता है तो उस टाइप से है. suitable for the city situated at one side of the natural water body such as the river. Entire sewage flows to a common point where one treatment plant is located, है ना. ये जैसे अलग अलग इंटरसेप्टर या ट्रंक सीवर्स बताए गए हैं, उसके मेन सब मेन्स हाउस सीवर्स एक्सेट्रा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर टेकन थ्रू दी वन पाइपलाइन एंड एट लास्ट मेन और ट्रंक सीवर टेक्स टू द ट्रीटमेंट प्लांट, और फिर बाद में ट्रीटमेंट प्लांट से नदी में या कहीं जो भी नेचुरल रिवर कोर्स एखादा तालाब है तो उसमें छोड़ सकते हैं. So number of the converging main sewers and submains are used, forming a fan shape. Therefore, it is called as a fan pattern. Single treatment plant is required. The only drawback is larger diameter sewer is required near to the treatment plant as entire sewage is collected at the common point. ठीक है, ये इसका फैन पैटर्न क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. जनरली हम जो प्रोवाइड करते हैं हमारे एरियाज में, तो वो जनरली वी प्रोवाइड द फैन पैटर्न और द इंटरसेप्टर पैटर्न, और यू कैन से द लास्ट इज द जोन पैटर्न. यानी पूरा एरिया जो है अलोंग साइड द रिवर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स, है ना. हमारे यहाँ जैसे है, जैसे नागपुर में है कि भाई लक्ष्मी नगर जोन, धर्मपेट जोन, और कोई नंदनवन जोन, और वेरियस जोन्स आर देयर, गांधी बाग जोन, नंदनवन जोन वगैरह. तो अलग अलग जोन में उसके डिवाइड करने के बाद में वो अलग अलग जोन के फिर से हाउस ड्रेन, फिर से सब मेन, मेन, इंटरसेप्टर, ओके, ट्रंक, ऑल दीज आर कनेक्टेड टुगेदर एंड ब्रॉट टू द सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट. जैसे नागपुर में उन्होंने भांडेवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट है और 2-3 जगह पे, लेकिन हमारा मेन ट्रीटमेंट प्लांट है भांडेवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट. सो मोर नंबर ऑफ द इंटरसेप्टर्स आर प्रोवाइडेड इन दिस पैटर्न. दिस पैटर्न इज सुटेबल फॉर स्लोपिंग एरिया देन फ्लैट एरिया. ठीक है, तो वी हैव सीन ऑल these 5 patterns. The first is the perpendicular, second is the interceptor, third is the radial pattern, fourth is the fan pattern, and fifth is the zone pattern. Okay, so here we will take the break. Different shapes and cross sections of the sewer, and how the different cross sections are useful, and the next part, that is the quantity estimation etc., that we will cover in our next lecture. I am very happy